I think you can start the meeting. श्योर सर। सुप्रभात एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र पटना की ओर से आयोजित आज के इस एमएससी इन्वायरमेंटल कार्यक्रम के जनवरी 2026 सेशन के नव नामांकित शिक्षार्थियों के ऑनलाइन इंडक्शन मीट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का हिस्सा बना और आपने उच्च शिक्षा के लिए इग्नू जैसे विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय को चुना है। यह आपके शैक्षणिक और समर्पण और उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की इस इंडक्शन मीट में this has been organized basically with the objective to formalize you all, dear learners, with the academic system, the learner support services, the digital platforms which we have, what is the examination process, how you are supposed to do your assignments, study materials, and various other student support services which we offer. We'll be letting you know all these things in this interaction, and I'm hoping that this interaction will also help you to understand the flexible opportunities that the open and distance learning system of ours offers to you. So we are extremely privileged to have with us our distinguished officials, program coordinators, academic coordinators, and academics from the Regional Center Patna Study Centers, ma'am from the headquarters, and they all will guide you, dear learners, for the various aspects of this very particular academic journey in specific reference with the MSc Environmental program. Firstly and foremostly, with huge respect, I would like to invite our Senior Regional Director, Sir Dr. E. Krishna Rao, sir, for his presidential address. Sir, over to you. Yeah, thank you, Dr. Neelu Sharma. Professor Sakshi Shah, Program Coordinator of MSc Environmental Science. At the same time, former Registrar of Student Evaluation Division, IGNOU, New Delhi. My colleagues from the Regional Center, Dr. Asif Iqbal, Deputy Director, Dr. Neelu Sharma, Assistant Regional Director, other Regional Center staff, and academic counselors, and my dear learners. At outset, I congratulate you all, the learners, for registering with Indira Gandhi National Open University for this MSc Environment Science program at Regional Center Patna. As you are all aware, Indira Gandhi National Open University is a central university. It is directly under the Ministry of Education, and it is having the network of the 60 regional centers across the country, and at the same time having the 25 overseas centers in the world. And this IGNOU has reputed and recognized as a people's university because of its quality education. The IGNOU got to the NAAC highest grade, A++, and at the same time, IGNOU has been awarded first rank in the NIRF ranking under the Open University category. At the same time, this IGNOU Regional Center Patna is one of the largest regional centers of IGNOU, and I can also say proudly it is the highest enrolled regional center. You are all very much fortunate registering under this Patna Regional Center, where
we are striving to provide better student support services about your academic issues as well as other issues. And this coming to the induction meeting, generally in the open and distance learning, the induction meetings are playing a vital role, and it is all very important one because of so far you are all experienced with the conventional mode of education where the student has to go regularly to the college or university and meet their peer group or meet their faculty members and attend the classes as per the timetable, and day to day activity you have to do perform in your classroom. But whereas in the open and distance learning, teacher and student are physically separated by the distance. At the same time, they are every day, every minute are connected through the media. That is, we adopted in the IGNO, that is a multimedia approach. It is a blended mode. Blended mode means print as well as the electronic media involved in these academic deliberations and delivering the program, where we have adopted this instruction system that, as I told, it is a multimedia approach. That very crucial one, it consists of the three important components. Why in these induction meetings we are explaining about your academic journey, how it will be make you very comfortable once you understand the system, the program delivery, the instructional system, student support services. Then your journey, your program is a 2 years program where you are all going to write the examination semester based. Your journey, 2 years journey, will be very comfortable. That's what we request all the learners to join for this induction meeting. Once you attend this induction meeting without any mistakes, without any issues, because of we are receiving so many emails where everyone is asking about how to write the assignment, when is our examinations, when is our practicals, whom I have to meet for these academic issues, whom I have to coordinate. These are all the issues will be resolved here. That's why we are recording these induction meetings and we are uploading in our YouTube channel also for the benefit of all the learners. After this meeting, once we upload in the YouTube channel, then we will send you the link also to the learners. Now coming back to the instruction system, as I told, three important components which we are having in under this multimedia approach. That is the study material, that is a print one. Study material, we call it as a self-learning material or self-instructional material, self-directional material, self-motivating material, self-evaluation material. Here you can see the common one is self. That means yourself you can motivate by reading of that study material. And also you will be directed by reading of that study material, what to do further. And also you can evaluate yourself by reading of the study material, because every unit end, there is a end unit activities. Check your progress questions. By answering to the check your progress questions, where you are evaluating yourself, how far you understood the content given in the unit. That unit structure also very well designed for the benefit of the learners. Because of you are the distance learners, you may not be having that much time. Of course, you are all well grown up and adult and well matured. You are having the knowledge
to add value to your existing knowledge, you all have joined to this program. If you see the group of your peer, it is a heterogeneous group, having the housewives one side, having the working professionals another side, having the government employees another side. You have the scientists also another side. This is a variety of the people, variety of the knowledge, where you can exchange. Okay, this in this way, in very simple way, the study material also prepared. Yourself you can understand, and but you evaluate yourself. That's why in the every unit it is given objectives in the beginning. Then each unit is having its own objective. The beauty of the open distance learning study material, particularly IGNOU study material, if you see the textbooks, regular one, whole textbook ke liye, there is only one objective. Here you have the unit-wise objectives. And the reading of that study material also, you should follow the certain techniques. Then only you can understand. By the step by step, you have to follow. If you see the unit structure, it is having the objectives, introduction, sections, again subsections, the finally summary of that particular unit, and check your progress questions. Once you start reading of that study material, first you have to read twice or thrice the objectives, understand the objectives of the particular unit, then slowly go to the introduction, then go to the sections. While reading the study material, if you get any doubts, then you note down. And also we have given the margin in the left side. You have to note down that one. And in the content, there are the diagrams, there are the formulas, there are the data that you have to note. And you have to prepare your own notes. Maybe in the conventional mode of education, the teacher used to give the notes. But here, you are all well matured and adult. No one is going to give you any notes. You have to prepare yourself. And the academic counseling sessions are the second part. That is through online or offline, through radio, through TV, through Swayam Prabha channels, we are conducting it. In these sessions, your doubts will be cleared. And even in the study material also, we are having the two forms. One is the digital study material, another one is the hard copy. While taking your admission, those who have opted the digital material, they got the 15% of fee concession. They will not get any hard copy. They have to go to the egyancourse.ac.in. I hope after the madam presentation, we will share you the screen, and we will show you that study material as well as the assignments download also. We will show you. You will get all the information on that our website also we will show you. But the thing is, the students, those who have opted the digital material, they have to go to the egyancourse.ac.in and you have to read. That is a very easy one. Also, we are having the IGNOU e-content app also, where the study material also you can download to your mobile, and while you are traveling, and you can read it. That facility you are having. Those who have opted the hard copy, the distribution is under process. Maybe within the 1 month time, you will receive it by post to your doorstep, means to your postal address directly from the IGNOU New Delhi. And the local students, we will call them to the regional center partner. We will give you by hand the study material. That is about the study material where you have to utilize the facility. And coming to the academic counseling, second component is whatever the doubts you are having. Pre-COVID-19 pandemic, we used to organize the offline classes. Now we are going for the maximum online counseling sessions for the theory papers, where even recently our Honorable Prime Minister is also suggesting go for the online meetings due to the
some other issues, we are also encouraging where we will conduct through online academic, particularly IGNO. You all might be knowing we are having the 24 hours educational channel, that is the Gyan Darshan, and we are having the online radio, that is the Gyan Dhara, and we are having the four Swayam Prabha channels, channel 14, 15, 16, 17, where different these programs we conduct the counseling. Please utilize that facilities. These are all the links we are uploading in our IGNO main website. At the same time, we are posting daily in our RC Patna Facebook page. By sitting at your home itself, you can watch, and it is also two-way communication, where if you have the audio is a two-way communication, video may be one-way communication. The teacher taking the classes through TV and radio, where you can also interact with them. And further benefit is we conduct the classes Facebook, through YouTube, and this recorded videos also available in our eGyan push. At the same time, I request you all, please subscribe our EMPC IGNO YouTube channel and RC Patna YouTube channel also, where thousands of the videos, recorded videos under the EMPC IGNO YouTube channel is available. Whatever the madam has taken the classes and our colleagues taken the classes to Gyan Darshan and all available there. That way we are providing you the support, academic support. Okay, this we impart. This we have followed this instruction system, and coming to the evaluation, we are having the continuous evaluation. It is consist of the self-evaluation, where after the unit your self-evaluation, which is not carrying any marks, which is carrying no marks. Second one is assignments, which carries the 30% of the weightage. I am mentioning here, it is a weightage of the 30%. Means question paper will be 100 marks, later on it will be converted to the 30. And also theory is the 70% weightage. We conduct the exam twice in a year, that is in the June and December. But where MS Environment Science, the students, it is a registration is yearly based, but the examination is semester wise. The first semester students can write the examination now. Those who have joined in the January, they can write the examination for the June. Otherwise, you can both the semesters combine and you can write in the December. That the form opens in the month of the September. For that, you have to pay the 200 rupees examination fees for each course. And coming to the assignments, assignment questions, you have to download from the website, that is very much available, and reading of your study material, you have to give the answers. I request you all, maybe I don't know how the data, some students are getting WhatsApp group link from the some other one, external sources, not from the IGNO. Keeping the name of the IGNO, they're asking the students to join in that WhatsApp group. I request you all, please don't join any WhatsApp group. Okay, except if anything from the IGNO headquarters or regional center Patna. Other than that, please don't join any group. And in that group, they are provoking you, they are misleading you by paying off the 200 or 500, you will get the assignments. These are all the things, all the duplicate things. Please don't believe that dubious mails or WhatsApp groups, and don't join and don't purchase anything. For answers of your assignments are very much available in our IGNO study material. 100% it is sufficient. I hope madam is also going to explain you how to write the assignment, because of the assignment answers
are available in your study material. Whatever you are presenting in the assignment, it should have the clarity and also sequence you have to follow. If they ask you 500 words, you can go up to the 600 words, not to the 5000 words. Simply don't copy the study material. You read the study material, understand yourself, try to write in your own words. These formulas, data, we cannot change as it is. But even presenting in the assignment, some formulas are there. You can highlight that one. And you can use only blue and black pen for writing of the assignments, either white paper or the rolled paper. You can use A4 size or A3 size, but don't use any color paper. And you can use the sketches also in the middle, highlighting the things, and one side writing or two side writing. That is all depend upon your resources. But the content should have the clarity, as well as your presentation should be proper as per the question paper. In the cover page, you have to write your details. That is the name, enrollment number, program code, and other details in the down of that page. Your full address, phone number, email ID. And the second page, you have to keep your identity card, photocopy. Third page, you have to keep the question paper. And these assignment should be submitted at your study center only, either by hand or by post. You can submit. This is about the assignments and the examination. I hope Madam is going to give you the more clarity on your subject related things. That's what I am touching upon, these issues where you are having the this practical component and the even project related. These are the things should be very deeply explained. Then only you will be very comfortable about your studies. Once you write the examination, from the last day of the examination, within the 45 days, we are declaring the result. Examination you can write anywhere. Theory examination in India, that is up to you. There is no compulsion. Since you are belongs to the regional center Patna, you have to write only examinations in the Patna. No, if you are going to the Delhi, at the time you can, while filling the examination form, you can select the Delhi as your examination center, and you can apply, and accordingly you will be allotted the examination center. My dear learners, I am requesting you all, please don't request change of the examination. It is the examination center. It is not possible. Once you select the examination center, it will not be changed. Okay, that is very clear. Before filling out your examination form, you should have the clarity on that. Then you can write anywhere in India about your theory examination. Whereas the practicals, you should attend at your study center and at your regional center only. That is the thing. Suppose whatever the theory examination result, you are not satisfied, you can go for the re-evaluation, even you, by paying off the certain fees fixed by the university, and also you can ask for the photocopy of your answer scripts. That facilities you are having. As you are all aware, IGNOU is having the 3-type system. It is the IGNOU New Delhi headquarters, regional center Patna is the regional center. Under the regional center Patna, we are having about the 30 study centers. The study center is at the grassroots level for any support services about your studies. First point is approaching point is your study center. You have to go there. There your coordinator, your assistant coordinator, other supporting staff are there. They will help you, and your academic counselors also available there. They will help you. Now under the regional center Patna, at present you have been allotted LSE 0500, that is regional center Patna. We are going to activate this program at the TPS college. Your practicals also
will be conducted at the TPS college very shortly. Actually, we plan to conduct before the examination, but we are going to conduct this first semester examinations after the theory, first semester practical sessions after the theory examination, because of it is not connected with the TEE June 2026. I hope that university regional center will decide the dates of the practical sessions as well as the examination, and we will inform you all about the practicals. There is no need to worry about your studies in our Indira Gandhi National Open University. I am finally informing you all the regional center and the IGNO is here to serve you and to support you about your studies. I request you all, please be comfortable about your studies in our IGNO. You are in the safe hands because it is a central university under the Ministry of Education, where about your degrees and diplomas are worldwide recognized. And finally, I wish you all the best for your studies in our IGNO. Once again, I thank Professor Sakshi Shahji for accepting our request and agreed to deliver the induction address to the MSc Environment Science students, and also thank to our colleagues for making this meeting and organizing it successfully. And I wish you once again all the best for your studies in our Indira Gandhi National Open University. Thank you everyone. Yeah, please, Dr. Neil, go ahead. Thank you so very much, sir, for your insightful and motivational address. Your guidance has certainly inspired all the learners and have provided them with a clear understanding of the academic support and the learner-centric services offered by IGNOU. सर ने एक बात जो मैं दोहरा रही हूँ आप सबके लिए, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसमें, बाकी सारी चीजें तो हम आपको बोलते रहते हैं, बट इट इज आवर वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please don't trust on those fake news which are being spread to you. किसी भी भ्रामक जानकारी का शिकार ना बने. हमने इस तरह के कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट नहीं किए हैं. और प्लीज बी being aware is the very first tool. So if you are aware, so this meeting is for your awareness. आपकी जागरूकता के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है. और डियर लर्नर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जागरूकता के साथ जो है आप अपने काम को करें. We are especially very honored to have with us today's subject expert with us, Professor Sakshi Shah ma'am. She is the program coordinator of MSc Environmental Program and has previously served as Registrar SED. Her vast academic and administrative experience will certainly benefit our learners. And it is our proud privilege to have you at RC Patna, ma'am. Now I would like to invite you for a brief orientation to the learners about the MSc Environmental Program structure. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Neelu Sharma ji. सबसे पहले तो मैं Senior Regional Director Patna, Dr. Krishna Rao ji, I would like to place my sincere thanks, sir, first of all, for organizing this induction program for MSc Environmental Science student for January 26 batch, and also secondly for inviting me for this induction program. I also like to thank Dr. Asif and Dr. Neelu Kumari for taking active participation in organizing and helping hand-holding our learners of MSc Environment Science for completion of this program. May I share my PPT, sir? Yes, ma'am, please. Yes, madam, please go ahead. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it moving? Yes, ma'am. Okay. So most of the thing has been covered by Senior Regional Director, Dr. Krishna Rao ji. I will be covering the course structure and why this course is important and how you should just handhold you in completing this course. To begin with,
why this program, MSc Environmental Science program, is having such an important role in today's education scenario. We know that we are living in a world where everything which we require, we derive from the nature. The air we breathe, the water we drink, the natural resources, the food we eat, or for any economic development, whatever the resource material is required, that we are getting from this environment. But nowadays, we are facing so many environmental challenges. You might have observed that many people are having so many health effect, whether it is because of various type of pollution. अगर ये air pollution है, उसकी वजह से हमें काफी सारी problem, health related problem हो रही हैं, चाहे वो bronchitis हो, चाहे वो हम particulate matter जो है air के साथ ब्रीथ करते हैं, जिससे हमें लंग्स की प्रॉब्लम होती है या हमारी रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमें कई तरह की और बीमारियां होती हैं। ऐसे ही जो पानी हम लेते हैं, वो पानी many a time it is contaminated, whether it is contaminated with industrial water or industrial effluent और एनी अदर इफ्लुएंट, उसकी वजह से हमें बहुत सारी जो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल डायरिया अगर आप कह लें, या और भी जो हमें वाटर और सैनिटाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम होती हैं। इसी तरह से सॉइल में अगर हम देखें, हमें जो खाना मिलता है, व्हाटएवर फूड वी आर गेटिंग, दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर सिस्टम वी नो दैट इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मोनोकल्चर, फ्रॉम पॉलीकल्चर टू मोनोकल्चर। वो क्रॉप को हम डिजीज से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए इतना ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं, वो केमिकल्स सब वाटर में जाते हैं, वो हम पानी में पीते हैं। So whatever the activities, human related activities, that has created a problem to our environment. अगर आप कोई भी recent report देखें, अगर आप वर्ल्ड IUCN की रिपोर्ट देखें या यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देखें, तो आप देखेंगे कि मेन 3 ग्लोबल प्रॉब्लम दे आर फोकसिंग। पहली जो है वो है क्लाइमेट चेंज, दूसरी है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड है वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये तो ग्लोबल चेंजेस है। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट इज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, greenhouse gases are increasing. Because of that increasing temperature, there are so many effects, whether it is on the social level, biological level, glaciers melt हो रहे हैं, हमारे crop dynamics change हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो climate की वजह से हो रही हैं, health effect। climate है, सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज अगर आप देखें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी चीज जो मेन इन्वायरमेंटल इशू जो ग्लोबल लेवल पे होती है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले अगर आप देखें जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती थी 10,000 मिलियन ईयर्स, या फिर आप देखें बहुत सालों में कोई एक स्पीशीज जो है वो विलुप्त होती थी, एक्सटिंक्ट होती थी। बट नाउ वी आर रीचिंग दैट वी आर in a continuously many species are becoming extinct. इसके वजह से हमारा जो है लैंड यूज सिस्टम चेंज होने की वजह से हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो है हमारे को अफेक्ट करती हैं। और तीसरी चीज जो मेनली है ग्लोबल लेवल पे वो है पोल्यूशन, वेदर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और किसी तरह का पोल्यूशन आप ले लें। नाउअडेज जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन हम देखते हैं वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन आप देखें, वेदर इट इज नाउ इट इज कन्वर्टिंग इनटू माइक्रोप्लास्टिक, इट इज गोइंग टू नैनो प्लास्टिक। ओशन को हमारे पूरा इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे पूरे ओशन डायनामिक्स को चेंज कर रहे हैं। ओशंस आर द मेन रिसोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक होता है, तो इंटायर इकोसिस्टम जो है चेंज हो रहा है। ऐसे ही माइक्रोप्लास्टिक जो है हमारे खाने में आ रहा है, इवन ड्रिंकिंग वाटर में आ रहा है, इवन मिल्क में आ रहा है, इट इज पासिंग थ्रू प्लेसेंटा बैरियर, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। So we are facing so many problems. There are many drivers of environmental change. Human population is one of the main driver of environmental change. मैं human population की बात किससे कर रही हूँ कि पहले अगर आपने देखा होगा, you might have read कि पहले के कई सारे हमारे जो है mass extinction हुए हैं, but वो natural हुए हैं। But now the era after the
middle 20th century, this epoch is known as anthropocentric or Anthropocene. यानी कि ये जो पूरा era है वो it is dry. Anthropocentric मतलब human activity. All human activities are changing the entire ecosystem, and whether it is urbanization, industrialization, whether any development which is not considered taking into the account of environment, these, and also the technological shift. Why I'm saying technological shift? आप मोबाइल देख लो, लैपटॉप देख लो, डिफरेंट टाइप के गजेट्स देख लो, these all are when या फिर आप कोई भी चीज देख लो, सोलर पैनल्स देख लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख लो, ये सारी चीजें they are technological development. But how to dispose of the waste which is generated by these technological intervention, that is also creating the environmental problem. So this is all happening to our environment. So how we should respond to that, to this environment? There are many questions that need to be addressed. So to address all these questions or to improve the condition of the environment, first of all, there are many roles one has to play. Government has to play a role while making a policy which should be environmental friendly. जो भी economic activity होती हैं वो सारी environmental friendly. Everyone has to play a role. So I'll not go in detail, but a community has to play a role. But as an individual, as a student, what is our role? We should be aware about the environment. What is our environment, how it is changed, what are different policies, so that we can actively contribute for the improvement of the environment by capacity building in the field of environment. आप MSc environment science करके environment की कई सारे field हैं जिसमें काम कर सकते हैं. ये आपका livelihood भी हो सकता है, ये आपकी job भी हो सकती है इसको करने के बाद, और इसके अलावा अगर किसी में environment को कुछ करने का passion है तो वो भी आप environment के बारे में जान के you can continue about that. So I'll not go in detail. These are the environmental problem. We all know. अभी कृष्णा राव सर ने भी बोला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, recently geopolitical situations also are focusing on environmental aspect. हमारी जो पुराना कोविड के बाद भी ये सारी चीजें आई थी, इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन से हमारा जो भी इमिशन हो रहा है वो हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है. ऐसे ही अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर को जाएं, हमने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी ग्लासगो में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. दिस इज फॉर एवरीवन. The environmental issues are very important. ये तो ग्लोबल इशू की बात में करें. अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट CO2 इमिटर है इन द वर्ल्ड. CO2 हमको पता है कि मेन ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और सारी इराटिक रेनफॉल हो गई या फिर जो भी हमारी डिजास्टर हो रही है, नेचुरल कैलामिटीज या मैन मेड कैलामिटीज, वो हो रही है. हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, 1.4 बिलियन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है. हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर आप देखें तो जो भी पॉपुलेशन है उसको सरवाइव करने के लिए हमें हर तरह का रिसोर्सेज चाहिए. सो वेयर वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. इन रिटर्न वी आर नॉट डूइंग मच फॉर द एनवायरनमेंट. यू ऑल माइट बी नोइंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन रीसेंट लेक्चर्स और इन रीसेंट जो आपकी काउंसलिंग होंगे आप सब पढ़ोगे. मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बिकॉज हमने जब ये प्रोग्राम बनाया, ये सारी चीजें ध्यान में रख के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स वी हैव कवर्ड. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स you will be an expert in the field of environment and it will be helpful for your career advancement also. 70% इंडिया में पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर अगर आप देखें, हमारे इंडिया में मेनली क्रॉप ज्यादा जो ग्रो होती है राइस, मेज एंड व्हीट. इसके लिए कोई भी एरिया हो,
वहां कितना पानी चाहिए, कितना रिसोर्सेज चाहिए, कितना लैंड चाहिए, धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर रही हैं। और हमारा जो है फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है। वाटर स्कार्सिटी की अगर हम देखें तो इंडिया में 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन 4% फ्रेश वाटर है। एयर पोल्यूशन हमारा इंडिया जो है, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड, मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड। दुनिया के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड में से 15 सिटीज जो है वो इंडिया में है। ऐसे इंडिया जो है वेस्ट जनरेट करती है, वो 62 मीट्रिक सॉलिड वेस्ट जनरेट करती है किसी भी फॉर्म में आप देखो। इसके अलावा प्लास्टिक देखो, म्यूनिसिपल सॉलिड देखो, आप कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट देखो, ई वेस्ट देखो, एनी टाइप ऑफ वेस्ट, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट। सो बट हमारी इंडिया में भी अगेन वी आर ऑब्जर्विंग सीरियस क्लाइमेट चेंज इशू। सो ये सारी चीजें हैं, ये मिशन लाइफ के 7 एस्पेक्ट हैं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, जो हमें अपनी डेली लाइफ में हमें यूज करने चाहिए। सो हमारा कोर्स भी जो है वो इन सब बातों पे फोकस करता है। नाउ कमिंग टू अबाउट द प्रोग्राम, कृष्णा राव सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि इग्नू को क्यों, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। We have national jurisdiction, more than 66 रीजनल सेंटर। अगर आप देखें 2000 से ज्यादा स्टडी सेंटर है। आपको एग्जाम कहीं भी देना है, किसी भी स्टडी सेंटर में आप दे सकते हैं। बिसाइड दैट अगर हमारे अकेडमिक काउंसलर देखें, नंबर ऑफ अकेडमिक काउंसलर, अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में फ्यू नंबर्स ऑफ अकेडमिक काउंसलर। हमारे वहाँ अकेडमिक काउंसलर देखिए, एवरीथिंग, इट इज रियल सेंस ऑफ मेगा यूनिवर्सिटी। यूजीसी ने हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया है एंड ऑल द सब्जेक्ट जो हैं, जो कोर्स जो डिजाइन हुआ है, इंडिया के सबसे बड़े से बड़े जो एक्सपर्ट हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन्होंने ये कोर्स बनाया है। आपको ये ओपननेस से फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है अपनी ओन प्लेस से कर सकते हैं, और बहुत ही इलैबोरेट स्टडी सपोर्ट सिस्टम है। सो इग्नू में मैं शुरू में आपका स्वागत करना चाहिए था, आप सभी लोगों का इस एमएससी एनवायरनमेंट साइंस में मैं स्वागत करती हूँ। एमएससी एनवायरनमेंट साइंस की बात अगर हम करें तो प्रोग्राम का कोड है एमएससी एनवायरनमेंट साइंस। इसमें कोई एज नहीं है, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन है 2 साल, मिनिमम है 2 साल, मैक्सिमम है 4 साल। दोनों सेशन में ऑफर होता है, चाहे आप जनवरी में लें, चाहे आप जुलाई सेशन में लें, हर सेशन में इसमें एग्जाम होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी जो साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है वो इसमें ले सकता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। कोर्स फी आपको पता ही है 8500 पर ईयर प्लस रजिस्ट्रेशन फी या जो भी डेवलपमेंट फी एज एप्लीकेबल है। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव में इसको रीड नहीं करूंगी, लेकिन मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि क्या इसमें दिया गया है। अगर आप अपने सारे कोर्स मटेरियल में जाएंगे, हर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव उसमें दिया है, कोर्स ऑब्जेक्टिव उसमें दिया है, ब्लॉक दिया है, यूनिट दिया है, हर किसी यूनिट के बारे में भी उसके ऑब्जेक्टिव दिया है। अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल रिसीव हो गया होगा तो यू माइट हैव सीन दैट हमारे जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, हर कोर्स की एक बुक होती है, जिसमें इन्वायरमेंट साइंस में अगर आप देखें तो सारे कोर्सेज जो है वो 4-4 क्रेडिट के कोर्स हैं। हर कोर्स में 4 ब्लॉक हैं, यूजुअली 15 to 17 यूनिट है, हर ब्लॉक में 4-4 यूनिट होती हैं। और ये यूनिट मतलब चैप्टर, तो आप कह सकते हैं कि एक कोर्स में 16 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर जो है वो इग्नू की जो खासियत है वो ऐसे लिखा होता है एज इफ यू आर टॉकिंग टू अ टीचर एंड द टीचर इज इनबिल्ड। उसमें बीच में एक्सरसाइज दिया है, सेल्फ लर्निंग एंड एवरीथिंग उसमें दिया गया है। ई ज्ञान कोश के बारे में सर ने बता ही दिया है। ई ज्ञान कोश में आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ई ज्ञान कोश में भी आप प्रोजेक्ट गाइड भी देखिए, प्रोग्राम गाइड भी देखिए। तो प्रोग्राम गाइड से आपको पूरे कोर्स के बारे में पता चलेगा, प्रोजेक्ट गाइड से आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। बट it is basically, I can say, the objective of this course is to develop a knowledge force which can deal with various environmental issues and can help in developing or can practice the various measures to improve the environment, whether it is through governance, policy, research, innovation, or any other means.
प्रोग्राम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, टोटल क्रेडिट इसमें 72 हैं, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। पहले सेमेस्टर में 4 कोर्सेज हैं, 16 क्रेडिट, 4 into 4। सेकेंड सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स हैं, 5 कोर्सेज हैं। थर्ड सेमेस्टर में अगेन 5 कोर्सेज हैं, और चौथे लास्ट सेमेस्टर में अगेन 4 कोर्सेज हैं। इनफैक्ट 3 ही कोर्सेज हैं, 16 क्रेडिट है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो 8 क्रेडिट का है। तो टोटल कोर कोर्सेज जो हैं वो 13 कोर्सेज हैं। इलेक्टिव कोर्सेज भी इसमें दिए गए हैं, क्योंकि many of you wanted to go to a specific field। जैसे कुछ लोग अगर बायोडाइवर्सिटी में काम करना चाहते हैं वो बायोडाइवर्सिटी इलेक्टिव लें, कुछ लोग इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं वो लें, क्लाइमेट चेंज करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज लें। तो टोटल 13 हमने इलेक्टिव कोर्सेज, 9 इलेक्टिव कोर्सेज हैं, उनमें से कोई 4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन जो है वो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर सबके लिए एक सा है। सो दीज आर द कोर कोर्सेज। आप 13 कोर कोर्सेज अगर आप देखें, पहला कोर्स है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड इकोलॉजी। इसमें अगेन 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में 16 यूनिट है। ये कोर्स जो है इंट्रोडक्टरी कोर्स है। ये आपको फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट साइंस, जो आपको सारे डोमेन्स एनवायरमेंट साइंस के बारे में बताती है, आपको इकोलॉजी के बारे में बताती है, आपको एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के कंपोनेंट हैं, एनवायरमेंट के टाइप्स हैं, डिफरेंट बायोम्स हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, सारी चीजें ये सब बताती है। इकोलॉजी के बारे में बताती है, हाउ दिस हैज इवॉल्व। environmental economics है। So all the domains, what is the fundamental of environment science, this is preliminary paper, ये आपको इसके बारे में बताती है। सेकेंड कोर्स आपका अर्थ प्रोसेस है। अर्थ प्रोसेस में जैसे आपको पता है कैसे अर्थ इवॉल्व हुई है, वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड सारी चीजें, जो डिफरेंट टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, ये सारी अर्थ के प्रोसेस में ये आपको बताती है। थर्ड कोर्स है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको एयर की केमिस्ट्री, वाटर की केमिस्ट्री, सॉइल की केमिस्ट्री, व्हाट आर द ग्रीन केमिस्ट्री, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, अगेन दिस इज आल्सो ऑन 16 यूनिट्स है, 16 चैप्टर आप ये सोच लीजिए, और आपको ये 4 ब्लॉक हैं। ये 3 कोर्सेज आपके फर्स्ट सेमेस्टर। चलिए पहले मैं बता देती हूँ। ऐसे ही सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो रिसोर्सेज के बारे में बताती है, चाहे आपके मेराइन रिसोर्स है, एग्रीकल्चर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्सेज है, एनर्जी रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें आपको बताती है। Environmental pollution control and management, various type of pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution, waste pollution, how to control, how to manage. Then environmental impact assessment, environmental legislation, मैं सबका डिटेल नहीं जाऊंगी, बिकॉज नाम से ही पता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। environmental health and toxicology, research methodology for environment science। the 3 मेन कोर्सेज इसमें है जो कि लैब कोर्सेज है। environment science lab course 1, lab course 2 and lab course 3। 1 फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। सो जो लैब भी हैं हमने इस तरह से बनाई है कि शुरू में बहुत बेसिक सेज हैं। जो हमारा फर्स्ट लैब कोर्स है, इट्स वेरी बेसिक, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस, आपने ये सब, बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह के इंडेक्स हैं, कैसे आपने बाकी चीजें देखी हैं जो भी इकोलॉजिकल, वो बहुत ही सिंपल लैब है। सेकेंड लैब में थोड़ा सा आपका केमिकल एस्पेक्ट आ जाता है, बीओडी, सीओडी, कैल्शियम, जो भी हमारे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑल दोस। जो एनवायरमेंट साइंस लैब कोर्स 3 है, इसमें थोड़ा हायर लेवल के लैब्स हैं, जैसे इसमें आपको सारे जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको बताया गया है, जैसे इसमें हैवी मेटल कैसे निकालते हैं, या फिर आपको कोई एंजाइम ऐसे करना है वो कैसे करते हैं, या फिर आपको पेस्टिसाइड कैसे करना है वो क्या है, ये सारी थोड़ा हायर लेवल की लैब है। आप जब लैब देखोगे, हर लैब कोर्स में 14 लैब्स हैं। सो almost this you have in each and every semester there is one lab course. Then fourth semester there is a project work. The project work is of 8 credit. I'll be coming into that, but ये सारे कोर्सेज आपके कोर कोर्सेज हैं। फिर आपके इलेक्टिव कोर्स हैं जो 9 कोर्सेज हैं, इनमें से आपको कोई 4 कोर्सेज लेने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे कोर्स कंपलसरी हैं, 3 कोर कोर्स, 1 लैब कोर्स। सेकेंड सेमेस्टर में आपके 2 कोर्सेज जो हैं वो कोर कोर्स हैं, एक इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, और 2 इनमें से कोई एक आप ले सकते हो, एक लैब कोर्स है। ऐसे ही तीसरे सेमेस्टर में भी आपको लैब कोर्स और कोई एक
कोर्स लेना है और चौथे सेमेस्टर में 2 कोर्सेज जो आपके हैं वो ऑप्शनल कोर्स में है. Why in 4th semester, after completing 3 semester, you will be more aware about the area where you wanted to work. So accordingly, you can take your elective subject, and accordingly, you can decide your project topic, whether you wanted to work on climate change, whether you wanted to work on management, whether you wanted to work on any रिसोर्स मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ में, फिशरीज में, एग्रीकल्चर में, सोसाइटल एस्पेक्ट है, जो भी आप करना चाहते हो वो आप इस तरह में आके आप ज्यादा क्लियर हो जाओगे. तो ये 4 कोर्सेज जो हैं वो टोटल 16 कोर्सेज आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हैं. ये आपके सेकेंड सेमेस्टर के हैं जिसमें आप कोई भी एक इलेक्टिव कोर्स ले सकते हो, कोर कोर्स और इलेक्टिव कोर्स, और एक लैब कोर्स. ये आपके थर्ड सेमेस्टर के हैं जो कि आप ले सकते हो. इसमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी भी हमने थर्ड सेमेस्टर में दिया है, बिकॉज प्रोजेक्ट में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी हैविंग एन आइडिया व्हाट आर द वेरियस रिसर्च मेथोडोलॉजी, हाउ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज बीइंग डन, किस तरह का आप रिसर्च कर सकते हो. तो थर्ड सेमेस्टर में ये कोर्स भी कंपलसरी कोर्स है जिससे कि आपको थोड़ा रिसर्च का आइडिया हो जाएगा. एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके 2 इलेक्टिव कोर्स हैं और एक डिसर्टेशन है 8 क्रेडिट का. दो द डिसर्टेशन इज, रजिस्ट्रेशन आपका पहले ही हो जाएगा ईयर वाइज. इसमें मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अपना डिसर्टेशन जो है वो थर्ड सेमेस्टर से ही शुरू कर दें. थर्ड सेमेस्टर से ही अपना यू स्टार्ट फाइंडिंग द रिसर्च एरिया वेर यू वांटेड टू वर्क. अपने गाइड को आइडेंटिफाई कर लो, अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लो, अपना सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके सिनॉप्सिस अप्रूव करा के यू स्टार्ट योर project work. Because mostly what happened, many students only after coming into the fourth semester they start working on their project, they are thinking about the project, synopsis, guide. So सेमेस्टर सिर्फ 6 महीने का है, उसमें आप रिसर्च भी करोगे, सिनॉप्सिस भी करोगे, गाइड भी ढूंढोगे, सबमिट भी करोगे. तो यू सबमिट एट द एंड. इसकी वजह से थोड़ा वाइवा डिले होता है. और सम टाइम द पीपल हु वांटेड टू कंप्लीट इन 2 years, अब आप अगर हमारा दिसंबर में सबमिट करते हो तो ऑब्वियसली वो वाइवा जाते जाते 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं. तो ट्राई टू डू एज सून एज पॉसिबल. थर्ड सेमेस्टर से ही अपना सिनॉप्सिस का काम शुरू कर दीजिए, अपना रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, अपना गाइड आइडेंटिफाई कर लीजिए, सिनॉप्सिस अप्रूव करा के फोर्थ सेमेस्टर में जैसे ही प्रोजेक्ट सबमिशन का काम आता है उस वक्त आप प्रोजेक्ट सबमिट कर लीजिए. दिस इज माई सजेशन और माई एडवाइस टू यू. स्टूडेंट, हमारा जो भी प्रोग्राम है वो स्टूडेंट सेंटर्डनेस है सारी चीजें, बिकॉज हमारे डिस्टेंस लर्नर हैं. हम मोस्टली जो है सारी एक्टिविटीज जो है स्टूडेंट को ध्यान में रख के करें. जो हमारा स्टडी लर्निंग मटेरियल है एज हम उसे हार्ड कॉपी भी भेजते हैं, विच यू माइट हैव ऑल हैव रिसीव्ड. इफ नॉट, इट इज अवेलेबल इन ई ज्ञान कोश. ई ज्ञान कोश में डालिए, उसमें MSc ENV डालिए. हर सेमेस्टर वाइज आपको सारा का सारा कोर्स मटेरियल उसमें अवेलेबल है. उसमें प्रोग्राम गाइड भी है, उसमें प्रोजेक्ट गाइड भी है. अगर किसी ने नहीं रिसीव किया है तो सारा का सारा उसमें देख लीजिए. ऐसे ही मल्टीपल मोड ऑफ प्रोग्राम डिलीवरी है. रीजन सेंटर और स्टडी सेंटर तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग करेंगे ही. इसके अलावा हम उसको यहाँ से स्वयं ज्ञान दर्शन से भी हम काउंसलिंग करते हैं, जिसको वो ज्ञान दर्शन का लिंक जो है वो हमेशा फेसबुक में भी रहता है, RC वेबसाइट में ही रहता है. हम भी स्टूडेंट को शेयर करते हैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो. इसके अलावा अगर आप देखोगे स्वयं प्रभा में भी इग्नू के चैनल हैं 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जिसमें बेसिक साइंसेस वाले चैनल में आप देखोगे तो MSc एनवायरमेंट साइंस उसमें कंटिन्यूअसली उसमें काउंसलिंग चलता है. स्वयं में भी अगर आप देखोगे हमारे कोर्सेज जो है एनवायरमेंटल इश्यूज है, इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे कोर्सेज हमारे स्वयं में भी हैं. स्वयं इज अगेन मूव कोर्स एज यू ऑल नो. उसमें अगर आप सिर्फ वीडियो देखना चाहते हो, सिर्फ पढ़ना चाहते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें एडमिशन लेके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. इफ यू वांटेड टू गेट द सर्टिफिकेट, आपको फॉर्म भर के एग्जाम भर के आप ले सकते हो. अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू पे द फी, इफ ओनली वांटेड टू सी द वीडियो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन यूट्यूब. सारे के सारे देख सकते हो. ऐसे हमारे IRC होती है, IRC में भी कोर्स वाइज हमारे सारे इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्सेप्ट, उसमें भी आप जो कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो. तो कई तरीके से वी ट्राई टू रीच अवर लर्नर. जैसे भी जो भी डाउट हो हर तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं. ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन 11, स्वयं प्रभा और हमारी एकेडमिक काउंसलिंग.
इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इन जर्नल इवैल्यूएशन मैंने बताया है, सर ने भी बताया था 70% 30%। देखिए इग्नू के कोर्सेज बहुत आसान है, आपको सिर्फ उसकी जो हमारी टाइम लाइन है वो आपको फॉलो करना है। हर कोर्स में अगर आप थ्योरी कोर्सेज देखो, एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट 100 मार्क्स का है। उस असाइनमेंट में 10-10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आप अटेंड करिए, टाइम से उसे सबमिट करिए। उसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी आते हैं। सो असाइनमेंट इज वन वे और अदर इज अ प्रैक्टिस फॉर यू टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। उसी बुक में आपको जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया गया है, सारे के सारे आंसर उसमें होते हैं। असाइनमेंट इसीलिए है कि आप एक बार अच्छे से पूरी बुक पढ़ लें, पढ़ने के बाद असाइनमेंट को अपने लैंग्वेज में लिखें, कहीं हेल्प चाहिए अगेन यू रिफर टू द स्टडी मटेरियल, फिर लिखो, फिर रेफर करो, तो देखिए असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पे ही आपके एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। देन यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी की गेस्ट पेपर, आई मीन लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्या आएगा, कोई आपको बता रहा है, जैसे आजकल नीट में भी आपने देखा है। सो देयर इज नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। जब असाइनमेंट करते हैं उसी वक्त आपकी कोर्स की तैयारी। एंड 70 मार्क्स का आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन है। टर्म एंड एग्जामिनेशन की फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, टाइम से असाइनमेंट सबमिट करिए, आपका कोर्स क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल कोर्सेज जो है हमारा उल्टा है, देयर इज 70% इज द इंटरनल असेसमेंट एंड 30% इज एक्सटर्नल असेसमेंट। 14 दिन के लिए हर लैब कोर्स के लिए यू हैव टू कम फिजिकली एंड अटेंड ऑल द लैब्स। वो 7 दिन आपको सवेरे शाम जो है 10 दिन 14 दिन आपकी लैब्स होंगी। लास्ट में आपका एक प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा, जो आप कैसा करोगे उसको, उसका क्या आपका रिजल्ट रहा, कैसे आपने उसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव टेबल बनाया, जस्टिफिकेशन दिया, जिससे हमारी नॉर्मल बीएससी के लैब्स में होती है, उसके बेसिस पे आपको 30% होगा। सो लैब जो है 70% जो है, आप जितने दिन लैब अटेंड करते हैं, आपकी लैब कॉपी, आपका लैब रिकॉर्ड, आपने कैसे काम किया, उसके बेसिस पे आपको 70% दिया जाएगा। प्रोजेक्ट डिसर्टेशन जो है वो डिसर्टेशन तो 70% का है, जो आपने सिनॉप्सिस अप्रूव करा के जो आपने प्रोजेक्ट लिखा डिटेल में, क्या रिसर्च आपने की, क्या आपकी मेथोडोलॉजी है, क्या आपके डिस्कशन है, क्या आपका कंक्लूजन है, किस तरह का रेफरेंसिंग आपने की है, टोटल उसके बेसिस पे आपका 70% है। और जब वाइवा वर्सी होता है कि आप अपने रिसर्च को वेदर यू ओनली हैव डन इट, सिर्फ कहीं से कॉपी तो नहीं कर ली है, या बेसिक प्रिंसिपल्स भी जो होते हैं उसका आइडिया 30%। सो इट इज अगेन 70-30। पासिंग मार्क्स हैं आपके 40 हर कोर्स में, जब तक आप 40% इन असाइनमेंट एंड इन थ्योरी या फिर इन कंटिन्यूअस एंड टर्म एंड में नहीं लाए, आपका कोर्स 40 के बाद ही पास होता है। असाइनमेंट्स मैडम आपको दिखाएंगी, आई वाज थिंकिंग मैं ले जाऊंगी ज्ञान कोश एंड अदर थिंग, बट लाइक सर हैज सेड दैट नीलू मैडम विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। So lab course में attendance as I've told that it is compulsory। अपने study center, regional center की टच में रहें, अपने रहने खाने पीने सबका अरेंजमेंट आपको खुद करना होगा। The only thing you have to come, और सारे के सारे आपको करना होगा। उसमें गाइडेड एक्सपेरिमेंट है और अनगाइडेड एक्सपेरिमेंट है। गाइडेड एक्सपेरिमेंट एज I've told, जो हमारी लैब मैनुअल में लिखे हैं 20 एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट जो आप डेली कंप्लीट करते हो वो कहलाते हैं गाइडेड एक्सपेरिमेंट। उसमें आपको दिया है इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, रिजल्ट क्या होना चाहिए, डिस्कशन में क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, ये गाइडेड है। आप लैब रिकॉर्ड जैसे बनाते हो वो सारे के सारे बना के, जैसे ही रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर कहता है वैसे सबमिट कर दो, तो उसके बेसिस पे वो आपको 70% ऑफ मार्क्स देंगे, ओनली आपके काम करने के बेसिस पे। और इसी से, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस एक लैब बेस्ड कोर्स है, आई मीन लाइक देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साइंस कोर्स है, तो प्रैक्टिकल तो हाथ से ही करने होंगे, ऑनलाइन तो होंगे नहीं, इसलिए आपका होना जरूरी है। लास्ट में एक लैब फाइनल एग्जाम होगा जो 30 मार्क्स का होगा, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स होगी। लैब काउंसलिंग चलेगी। अब मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप देखें इस कोर्स को करने के बाद आपको इट हैज गॉट हाई मार्केट डिमांड, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज हैं, वेदर इट इज एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, वाटर की मिनिस्ट्री है, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, वेयर इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एयर वाटर फॉरेस्ट GIZ,
NBA, ZSI, BSI, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, पोल्यूशन कंट्रोल, स्टेट पोल्यूशन, सो कई जगह पे इस तरह की पोस्ट निकलती रहती हैं। आप इसको कंप्लीट करने के बाद ये जगह अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मीडिया जर्नलिस्ट कर सकते हैं, रिसर्च एरिया में जा सकते हैं। आजकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी इंटरप्रीनरशिप भी चल रही है, जैसे आप देखेंगे कि कई तरह का इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेस्ट मैनेजमेंट को लेके हो गया, या प्लास्टिक वेस्ट को लेके हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ एनर्जी को लेके हो गया। कई सारे एवेन्यू हैं जो आप इस कोर्स को लेके कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें, अगर हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में कहते हैं तो हमें कुछ एक्टिविटीज, कुछ एक्शन जो है हमारा माइंडफुल बिहेवियर होना चाहिए। दीज आर ओनली लिस्ट ऑफ 75 माइंडफुल बिहेवियर. इफ वी ऑल आर फॉलोइंग दिस इन आवर डेली लाइफ, आई थिंक मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज कैन बी रिजॉल्व. वाटर से रिलेटेड है, चाहे एनर्जी से रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, मोबिलिटी से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जैसे पानी में हम कहते हैं कि हमेशा ब्रश करते वक्त अपना पानी बंद रखें, अगर कहीं भी पानी लीक हो रहा है उसका टैप बंद कर लें, बकेट से नहाएं, शावर की जगह, रेन वाटर हार्वेस्ट करें, हम पानी को जो है वो रियूज करें। इसी तरह एनर्जी से रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड है, मेनली जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हम हर चीज जो हमारी यूज एंड थ्रो इकोनॉमी होती जा रही है उसकी जगह हम हर जगह उसको रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल और रिफर्बिश करके यूज करें, तो बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये तो एक जस्ट एग्जांपल है कि ये कोर्स आपको क्या टीच करता है अल्टीमेटली, लेकिन आपको सारी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक जो थ्योरीज है, वो सारा प्रैक्टिकल्स, थ्योरी क्लासेस इस कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं। सो विद दिस I think we are 3 program coordinator, myself, Dr. Venkataraman and Dr. Diksha Dave. If you have any queries, you can mail us anytime. You can contact to us through Region Center. I have also given my mail ID. कोई भी चीज है आप उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो Region Center आपके पास है ही। ignu.ac.in में आप continuously visit करते रहिए, वहाँ आपको एग्जामिनेशन की लास्ट डेट कब है, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट कब है, कब एक्सटेंड हुआ है, कब एग्जामिनेशन है, डेट शीट है, एवरीथिंग उसमें अवेलेबल रहता है। आप उसको बीच बीच में देखते रहिए, जिससे कि आपको सारी की सारी जानकारी उसके बारे में मिलती है। तो इसके साथ ही मैं आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम, सो दिस इज अबाउट इन्वायरमेंट साइंस, MSc इन्वायरमेंट साइंस प्रोग्राम। इसके अलावा इसमें कुछ इश्यूज जो आते हैं, अगर आप देखें ज्यादातर हमें जो मिलते हैं सुनने को, एक तो असाइनमेंट ही है। असाइनमेंट जो है वो वेबसाइट पे अपलोडेड है, प्लीज गो टू द वेबसाइट, असाइनमेंट डाउनलोड करिए, असाइनमेंट कंप्लीट करिए, उसको टाइम से सबमिट करिए। आप टाइम से सबमिट करेंगे तभी हम टाइम से उसे इवैल्यूएट कर पाएंगे। सो प्लीज फॉलो द टाइमलाइन। देखिए, व्हेन वी टेक एडमिशन इन अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, उनका फिक्स टाइमलाइन होता है, तब उनका फिक्स हर चीज होते हैं, बट वी हैव गिवन हियर यू फ्लेक्सिबिलिटी। बट आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, टाइम से अभी आ जाइए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट हैं सारे के सारे डाउनलोड, 4 ही हैं, 3 ही हैं, 1 तो लैब है। वो 3 असाइनमेंट अगर आप आज भी करने बैठे, विद इन अ वीक यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट। जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे हम उसे इवैल्यूएट कर लेंगे। तो फर्स्ट तो आपका थ्योरी कोर्स हो गया, जब एग्जाम आएगा एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए और उसे एग्जाम में अपीयर हो। लैब कोर्सेज जो है, जो रीजन सेंटर, स्टडी सेंटर लैब के लिए आपको टाइमिंग्स देती हैं, उस दिन आप अपना फिजिकली यहाँ अपीयर हुए, लैब अटेंड करिए, गाइडेड एक्सपेरिमेंट्स आप कंडक्ट करिए, सारे के सारे लैब रिकॉर्ड्स करिए, उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन है। देखिए 70% इवैल्यूएशन है, फिर आपका जो फाइनल गाइडेड अनगाइडेड एक्सपेरिमेंट होगा उसका एग्जाम होगा, जैसे होता है लैब कोर्स का, वो आपका लैब कोर्स है। मेन चीज जो आती है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट में ये चीजें आती हैं कि हम किसको गाइड लें, क्या टॉपिक लें, कैसे करें। तो मैं इसमें एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब आप 3 सेमेस्टर पढ़ लेंगे तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया ऑफ द टॉपिक्स व्हिच यू वांटेड टू गो फॉर द रिसर्च। अपने लोकल एरिया लेने की कोशिश करिए, जैसे आप बिहार में हैं, गंगा है, या सॉरी जो भी आपका एरिया है, जहां पर भी है आपको, वहां पर क्या वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड एरियाज हैं, क्या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, वेस्ट से रिलेटेड क्या है,
ESG का टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज है, रिन्यूएबल एनर्जी, देयर आर सो मेनी। आप रिसर्च पेपर पढ़िए, अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखिए क्या आपको रिसर्च प्रॉब्लम लगती है। जो 6 महीने का प्रोजेक्ट, आप चाहें तो किसी भी NGO से अटैच हो सकते हैं, किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हो सकते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में अटैच होके हो सकते हैं, आप कहीं भी अगर लैब्स चाहें वहां जाके ये सब एरियाज में कर सकते हैं। वहां जाइए, अपना एक अकेडमी, अपना एक सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले टॉपिक एंड सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कैन बी एनीवन हु इज having an experience in the field of environment science, at least 5 साल का experience होना चाहिए। he or she should be in a faculty position, a permanent job। उनका बायोडेटा पहले आपको अप्रूव कराना होगा। You have to approve the biodata of the supervisor. You have to approve your research topic. Once synopsis is approved, then go for whatever suggestion आपको मिल रहे हैं उसके बेसिस पे improve करके, approve होने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट करिए, प्रोजेक्ट गाइडलाइन देख लीजिए और प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट कर लीजिए। ये करने के बाद मतलब these are the only thing, otherwise आप देखोगे कि if I say every year 10,000, more than 10,000 students are registering for environmental science program। जनवरी 2021 में हमने लॉन्च किया था। एवरी सेमेस्टर वाइज एडमिशन है। 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे स्टूडेंट हमें मिलते हैं। एंड मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने इस बार का कॉन्वोकेशन देखा होगा, तो आपने नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर में भी अगर आप हर जगह देखोगे तो हमारे उपराष्ट्रपति के साथ एक लड़की की फोटो आ रही है। शी इज अवर MSc इन्वायरमेंट साइंस की पास आउट है। शी गॉट द गोल्ड मेडलिस्ट। शी हमारे जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने सिर्फ 8 लोगों को गोल्ड मेडल दिया, उनमें से एक MSc इन्वायरमेंट साइंस की स्टूडेंट भी थी जिसकी बहुत अच्छी परसेंट आई थी एंड शी got the gold medal। So मैं इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगी कि आप 86 लोग इसमें हैं, इनमें से आपको एक हो सकता है जिसको इस बार जो है मतलब 28 में जब आप कंप्लीट करें तो आपको एक गोल्ड मेडल एनवायरमेंट साइंस में मिल सकता है। इट विल बी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप अच्छे से अगर हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, असाइनमेंट अच्छे से कर लीजिए, आपको सारी की सारी चीजें उसमें मिलेंगी एंड ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। इसके अलावा इन्वायरमेंट तो आजकल इतना ज्यादा फेमस है, न्यूज़पेपर पढ़ो, ज्ञान आई मीन न्यूज देखो, मेनी थिंग्स ऑफ एनवायरमेंट एज ऑल्सो, जो अगर आप अपने को अपडेट करना चाहते हो, दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। विद दिस आई कन्वे माय बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स ऑफ एनवायरमेंट साइंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से कंप्लीट करें और अपने आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। विद दिस आई वंस अगेन थैंक्स रीजन सेंटर पटना फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंडक्शन मीटिंग। Thank you, sir. Thank you. Thank you so very much, ma'am, for your highly insightful and very, very inspiring induction address. The way you introduced this course, it must be very beneficial for the learners also, but it was very awe-striking for a mature like me who is not having the any interest or any expertise in this very basic fields. So your valuable discussion on how the way you started environment and how climate and then the plastic pollution, microplastics, environmental degradation, and how each and every one of us should contribute towards such thing. The way you spoke about the relevance of this very program was very insightful, because the connection between the environment, technology, geopolitics was truly enlightening. And you also spoke about the relevance of referring the project guide also, apart from the project program guide, which is also very beneficial for our learners. And the academic structure, the way you introduced, was also will definitely inspire our learners. The cherry of the cake was the 75 mindful behaviors which you shared. I think that each one of us should incorporate this and we should carry this forward, so that this can bring a positive change towards environmental protection and sustainable living. Most importantly, your emphasis on creating environment consciousness
was deeply inspiring today for our learners. And once again, ma'am, heartful thanks for your valuable guidance, for your valuable time, and your motivational interaction with the learners. We are grateful. Dear learners, Thank we are open for discussion. If you have any queries, you can ask us. I have seen in the chat box one learner has messaged about the official group. We will be circulating you information through emails, and your concerned LSCs might create some group, but we won't be creating any WhatsApp group. आपके कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. Will we get PPT on email? You can I'll get share. this I'll share. entire No recorded session. Yes, Ashutosh, you raised your hand. Please ask. Yes, ma'am. I want to ask you a few things. First of all, what are the procedure for submitting the assignment? I haven't received the assignment like papers and other materials Okay, from so the post office. मैम Yes. जो मटेरियल होता है जिसपे असाइनमेंट राइटिंग करनी है वो चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? परचेज करनी होंगी या फिर वो बाय पोस्ट आएंगी? मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ, वैसे मैडम दिखाएंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको एक वेबसाइट आपको दिखा रही हूँ. कैन यू सी दिस वेबसाइट? दिख रहा है आपको? ये वेबसाइट में आप डाउनलोड्स में जाइएगा. कैन यू सी दिस डाउनलोड? दिख रहा है? इज इट विजिबल? यस मैम. इस डाउनलोड देखिएगा, करंट असाइनमेंट पोर्टल है. इस असाइनमेंट पोर्टल में अगर आप जाओगे तो इसमें आप देखोगे MSc ENV, आप सर्च कर लो. 4000 समथिंग पे है, बट आई विल सर्च. वो अपने आप ऊपर जाएगा. इट विल गो ऑटोमेटिकली एंड यू कैन सी search option. Search option is not coming. I don't know why. But you can search MSc Environment Science. Please search करिए. ये आ गया, देखिए. इसमें मैं डाल रही हूँ MSc ENV. ओके, आप देखिएगा ये सारे के सारे असाइनमेंट आपको यहाँ पर दिख गए. ठीक, MEV 11, 12. You can see here at 11, 12, 13, 14. Can you see all these things? Okay, got it. Okay, and you can download it. Okay, it is download button. Okay. You can download. Can you see this is entire booklet MSc ENV? Yes ma'am. So this is the booklet. All the things are given over here. कैसे करना है, ये 3 फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज हैं बच्चे. फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज, कैन यू सी? इज इट विजिबल? नो, इट इज नॉट विजिबल. डाउनलोड करके देख लेना. मैंने तो खोला है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा. तो यहाँ से आप सारा का सारा ढूंढ सकते हैं. दिस इज वन थिंग अबाउट द असाइनमेंट. ओके, मैं आपको असाइनमेंट भी अगर आप देखें तो आई कैन शो यू द असाइनमेंट ऑल्सो विच आई हैव डाउनलोडेड जस्ट नाउ. मैं यहाँ से शेयरिंग बंद करके स्टॉप शेयरिंग एंड दिस इज द असाइनमेंट आई हैव डाउनलोडेड जस्ट नाउ. ये है. इज इट विजिबल? देखिए, Yes, ये ma'am. मैंने अभी Yes, वहीं ma'am. से डाउनलोड किया था. अगर आपने देखे, मैंने अपने से कुछ नहीं किया है. यहाँ मैंने 11 का, दिस इज असाइनमेंट बुकलेट. आपको ये असाइनमेंट बुकलेट पूरा मिल जाएगा. आप देख सकते हो MEV 11, MEV 12, MEV 13, तीनों जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स हैं, सारा का सारा इसमें दिया हुआ है. इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पेज कैसे देना है, कैसे काम करना है, ये सारा का सारा आपको दिया हुआ है. दिस इज योर गाइडलाइन फॉर TMAs. This is for these are your assignments. Okay, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है. You can see that. दूसरी चीज आपने जो पूछी कि क्या कहते, you said that कॉपी, आई मीन लाइक पेपर्स तो आपको खुद ही खरीदने पड़ेंगे. यू हैव टू परचेज. वो तो RC पटना सर ने पहले ही, राव सर ने बता दिया. यू हैव टू. And ma'am, one more question. जो इन्वेलप होता है वो इन्वेलप में उसको रख के और पोस्ट करना होता है.
वो मैडम नीलू मैडम बता देंगी आपको एड्रेस, बाद में कहाँ आपको करना है। सर ने पहले ही बता दिया था, कलर्ड में मत करना, हाथ से लिखना, अपना आई कार्ड वगैरह सारा फॉर्म जो उसमें दिया वो सारा भर देना। मैडम शायद आपको Okay. बताएंगी इसके बारे में, मैं तो सिर्फ आपको असाइनमेंट दिखा रही थी। अभी आपको Okay. फर्स्ट सेमेस्टर के 3 असाइनमेंट सबमिट करने हैं। वो तीनों असाइनमेंट आपको जो मैंने दिखाया, इग्नू वेबसाइट में जाना, वहां पर स्टूडेंट सर्विसेज होगा, डाउनलोड्स होगा, वहां पर आप सर्च करना MSc ENV, आपको सारे असाइनमेंट वहां मिल जाएंगे। ठीक है, Okay. ऐसे ही आप या अगर आप किसी को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए ई ज्ञान कोश पे जाइएगा, ई ज्ञान कोश, ये हमारा ई ज्ञान कोश है, दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? ये हमारा ई ज्ञान कोश है, इसमें यहाँ पर MSc ENV सर्च करिएगा। MSc ENV सर्च करने से देखिए आपको प्रोजेक्ट हैंडबुक मिल गई, प्रोग्राम गाइड मिल गया। ठीक है, MSc एनवायरमेंट साइंस में जाइएगा, सारे सेमेस्टर के कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। इज इट विजिबल? आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल ना। अगर आप जाएंगे तो ई ज्ञान कोश में अगर आप जाएंगे, आपको इलेक्टिव कोर्सेज के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड इट वॉट एवर कोर्स यू वांटेड। अभी तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको यू वांटेड ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज, so this is semester 1. These 3 courses are here: fundamentals of environment science and ecology, earth process, environmental chemistry and environment science lab course. All the thing is available. So till you are not getting the study material, आप आराम से इसे डाउनलोड करिए, इजीली पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में अपियर हुए, धीरे धीरे आपको सारे कोर्सेज आपके घर बाय पोस्ट पहुंच ही जाएंगे। One more question I want to ask. प्लीज। मैम जो जैसे मैंने ईयर ऑप्ट किया है मैम, सेमेस्टर नहीं है मेरे में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रोग्राम जो है MSc एनवायरमेंट साइंस, एडमिशन इसमें ईयर वाइज होता है। ठीक है, Yes, ma'am. आप उसको फर्स्ट ईयर का एग्जाम अगर आप 1 साल बाद देना चाहें 1 साल बाद दे सकते हैं। Yes, yes. लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि 1 साल में हमारे टोटल 6 कोर्सेज हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, तो सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप एग्जाम देना चाहें जुलाई में, 3 कोर्सेज का आप जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप देना चाहते हैं तो आप 1 साल में सारे के सारे फर्स्ट ईयर के कोर्सेज का एग्जाम दे सकते हैं। Okay. एडमिशन ईयर वाइज ही है, लेकिन हमने प्रोग्राम अपनी सुविधा के लिए इसे सेमेस्टर वाइज किया था, लेकिन आप इसे जैसे भी चाहें वैसे आप कर सकते हैं। और मैम इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आई एम वर्किंग, सो अगर मुझे 1 ईयर के एग्जाम मैंने दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर अगर मेरे पास छुट्टियां हैं तो मैं थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम सेमेस्टर वाइज दे सकता हूँ। बिल्कुल, आप देखिए जब चाहे तब दे सकते हैं, इंडिया के जिस कोने में चाहे तब दे सकते हैं। मिनिमम आपका 2 साल है, मैक्सिमम 4 साल है। आप सेमेस्टर वाइज दीजिए, ईयर वाइज दीजिए, जैसे आप देना चाहें वैसे आप दे सकते हैं। थैंक यू मैम। I think ma'am has answered all the queries. So may I now invite our Deputy Director, Dr. Asif Iqbal sir, to propose the official vote of thanks. Thank you, Dr. Neelu. Thank you, respected Sachi ma'am. मैं काफी गौर से मैं आपको पूरा सुन रहा था, और आपने जिस वंडरफुल्ली आपने जो पीपीटी के थोड़े ईच एंड एवरीथिंग से आपने जो लर्नर्स को सामने रखा, बेसिकली वो जनरली वही सब क्वेरीज, वही सब मेल्स, वही सारे जो है डाउट्स जो है ना, हम लोग के जो बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर अभी हम लोग को क्या करना है, हमें लैब्स का कितना होगा, असाइनमेंट से क्या है, स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स हैं और रिसर्च जो, वो सारी चीज के लिए सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो आपने मैम बड़ी खूबसूरती से, बड़े वंडरफुल्ली आपने उसको ईच एंड एवरीथिंग आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके और 4th सेमेस्टर तक आपने कर दिया। कुछ कंपलसरी कोर्सेज उसके बारे में भी आपने बता दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, लैब्स के बारे में बताया। बट एक चीज मैं और से लर्नर से ऑन बिहाफ ऑफ मैम आपको फिर उसी को रिपीट मैं करना चाहूंगा कि बच्चे लर्नर्स जितने भी हैं, आप सब जो है मैम को जो रखा हुआ टाइम, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लर्नर्स कहते हैं कि सर कोर्स बहुत थोड़ा सा टफ है। कोई टफ नहीं है, बस आपको टाइम का ख्याल रखना हुआ है कि हमारे यहाँ जो टाइम फ्रेमवर्क है, यू है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट,
प्रोजेक्ट्स, आपका लैब ओरिएंटेड जो भी चीजें, जैसे 90% आपको अटेंडेंस जो है ना कंपलसरी, यू हैव टू अटेंड, उसके लिए वेटेज वगैरह सब बताया मैम ने। असाइनमेंट्स को अभी आपको रन ड्राइव पे डेमो करके बताया कैसे आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने हुए हैं। 100 का है बट उसके वेटेज जो है ना 30% है। उसी तरीके से आपका लैब है, वो इंटरनल आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 70 का होगा, और एक्सटर्नल जो भी आएगा वो 30 का वो इसका एग्जाम्स होंगे। तो इसी तरीके से आपका प्रोजेक्ट वाला है, आपको जो है 3rd सेमेस्टर से उसको प्रयास में लग जाना है कि हमको कैसे तैयार करना है, और 4th सेमेस्टर में उसको इजीली उसको सबमिट कर देना हुआ। प्रोजेक्ट का एक 72 क्रेडिट्स का है, और 72 क्रेडिट्स में 8 क्रेडिट्स आपके प्रोजेक्ट्स हैं। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट द योर प्रोजेक्ट वर्क्स। आपको चूंकि 8 क्रेडिट्स को उसको कवर करने हैं, तो आप ये सारी चीजें हैं, मैम ने बड़ी खूबसूरती से सारी चीजें जो है कोर्स स्ट्रक्चर्स के बारे में, और खास से जो प्रोसेस है कैसे आपको इजी वे में यू हैव टू कंप्लीट दिस प्रोग्राम्स, तो सर मैम ने बड़े सिस्टमेटिक और बड़े इजी वे में सबको हम लोगों को भी रिफ्रेश किया, एक तरीके से अपडेट किया कि मैम कैसे कैसे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लर्नर्स, खास तौर से जो मैम का जो आज की इंडक्शन मीटिंग है उसके हवाले से जो है बच्चे जो है लाइट होंगे, अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। क्योंकि ये याद रखिए, ये सारी चीजें, यही सारी चीजें हैं। मैम ने सही कहा, अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि इस बार का जो कन्वोकेशन प्रोग्राम है, वन लर्नर फ्रॉम द स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस गॉट जो है गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से हमारा इस स्कूल का भी नाम बढ़ता है, हमें भी नाम अपने बढ़ेगा। आई होप के रीजनल सेंटर पटना से भी इस प्रोग्राम में जो बच्चे जो है ना गोल्ड मेडल के तौर पे भी आए। हमारा पटना का भी हमेशा एक गोल्डन एक इतिहास रहा है कि यहाँ से भी बच्चे काफी गोल्ड मेडल लेते हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि लर्नर्स में भी ये पटना से भी हों, और इसको मैम को भी जो है मतलब यह है कि एक तरीके से स्कूल का नाम रोशन करें। एलुमनी है, आप कहीं भी हमारे तरीके से जाते हैं, हमारा आप एक तरीके से एम्बेसडर होते हैं। मैम सही बता रही कि ऑब्जेक्टिव्स है इस कोर्स के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत सारी चीजें हम लोग जूझ रहे हैं आज की डेट में, जो है क्लाइमेट से, एनवायरमेंट से हवाले से है, सारी चीजें हम सब आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड जिस ऑर्डर में आज के डेट में है, किस तरीके से सारी पोल्यूशन हो रही हैं। हमें लकली वी आर साउथ एशिया में और एशियन कंट्रीज में भी इस तरीके से सारी सिचुएशन आप सब जानते हैं। तो वाटर पोल्यूशन है, इस तरीके से आपका नॉइज पोल्यूशन है, पॉपुलेशन के है, इकोलॉजी सिस्टम, ये सारी चीजें हैं, उसका जो है सारे इश्यूज हैं, मिशन से वो आपको नॉलेज अच्छा लगा। हम लोगों को चूंकि मैम स्टूडेंट के आदमी, हम लोग लिटरेचर के हैं, लेकिन ये सारी चीजें मैम बता रहे थे कितना आगे डे टू डे वी आर फेसिंग दैट इन लाइफ। तो हम लोग जो है ना इसको करते हैं, तो आपको वाटर जो है डिजीज आज के देर में खास तौर से उसके ऊपर जो है काफी फोकस किया जा रहा हुआ है। और मैम बता भी रहती सही कि आज के डेट में जो वाटर पोल्यूशन देखिए, जैसे गंगा हमारे यहाँ से बहती है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या सारी चीज आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपना रिसर्च अपने सोर्सेस सबमिट कीजिए उसके ऊपर, और थ्रोली आपको देखिए मेथोलॉजी क्या है, आप तरीके से सारे जानिए। आप अपने जो डिग्री के लिए मत पढ़िए, आप नॉलेज के लिए हवाले से इसको जो है कोर्स कीजिए कि हमें डिग्री सिर्फ एमएससी इन्वायरमेंट ही नहीं है। आप जो इस कोर्स करेंगे तो इट मीन्स यू हैव टू कम ऑन दिस सब्जेक्ट्स। आपको कुछ लगेगा हाँ हमने इस जो है कोर्स को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जाना समझा, फिर रिसर्च आपका मेथोलॉजी क्या है, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो प्रोजेक्ट हो, रोल मॉडल हो के कोई आप बाद में पब्लिश कर सकते हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि आप इससे नेट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपके लिए वाइड रेंज की तरीके से सारी चीजें स्कोप बने हुए हैं। तो मैम अच्छा लगा इतने सारे डिटेल से। मैं खुद इस पीपीटी को मैं कुछ जो है स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है, कुछ खासकर जो वो क्रेडिट सिस्टम प्रोजेक्ट वाले के था, वो सारी चीजें के बच्चों को हमें बताना होता है जो क्वेरीज आती हैं। तो मैम बहुत बहुत आभार आपका कि गिवन वैल्यूएबल टाइम फॉर अस फॉर दिस इंडक्शन मीटिंग। और हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर ई कृष्णा राव जी पिछले 2 महीने से आए हुए हैं। व्हेन ही ज्वाइन, जब से है तब से वो स्ट्रीमलाइन सारी चीजें जो कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ख्याल है कि लगभग ये मैं इन्वायरमेंटल साइंस में लगता है कि पहली बार हम लोग इंडक्शन मीटिंग कर रहे हुए हैं। तो इस तरीके से मैम को एज ए गेस्ट तौर पर बुलाया हुआ है। और मैम जो है बड़ी जो है इससे पहले जो है रजिस्ट्रार एसीडी थी, तो बहुत सारी असाइनमेंट के हवाले से सारी चीजें आपने खास प्रोजेक्ट के हवाले से सारी चीजें बताई हुई। मैम सारी चीजें प्रैक्टिकली सब देख चुकी हैं, तो लर्नर्स आपको एक तरीके से बड़े। हाँ, एक और चीज जो है मैम बता रही थी जो मैं आपको रिफ्रेश करना चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट गाइड देखिए और उसमें एक प्रोग्राम गाइड देखिए, इस सबको अलग अलग डिफरेंस। आप जब दूसरी सारी चीजें मन में आपके जो क्वेरीज रहते हैं ना, डाउट्स रहते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट गाइड के हवाले से और प्रोजेक्ट गाइड के हवाले से सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है, गाइड किसको चुनना है, कैसे बनाना है, मेथोलॉजी कैसे होगी, ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले तो आप जो भी आपको प्रोजेक्ट गाइड है उनको देखिए, प्रोजेक्ट गाइड को देखिए, प्रोग्राम गाइड्स को देखिए,
आप जो है आपका जो हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग वो कॉमन प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है या देगा, उसका देखिए तो आपको पता चलेगा क्रेडिट्स क्या है, किस सेमेस्टर में हमको ऑप्शनल लेना है, कौन से कंपलसरीज हैं, लैब कितना है, कितने परसेंटेज है, ये सारी चीजें, यही सारी क्वेरीज आती हैं आपके। बस आप अब एक बार आप अपडेट हो जाइएगा तो बड़ी इजी वे में, वेरी इजी वे टू हैव टू कंप्लीट आप कर दीजिएगा। इस तरीके से मेरा अपनी उम्मीद है। इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। हमारे जैसे मैं कह रहा था, रीजनल डायरेक्टर सर ने आया, सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश किया, उन्हीं की लीडरशिप में ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हुए हैं। डेली 1-2 इंडक्शन मीटिंग हम लोग मैम कर रहे हुए हैं। और हमारे साथ हमारी डॉक्टर नीलू शर्मा न्यूली ज्वाइंट, ये है काफी एनर्जेटिक हैं और जो है काफी तरीके से हर चीज को जो है बड़े खूबसूरती से अंजाम दे रही हैं इसको। और हमारे साथ जो हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारे जो ये सारी टेक्निकल टीम, जो श्री मोमित लाल जो है हमारे जो कंप्यूटर हेड हैं, उन सारी चीज मैसेज भेजते हैं बच्चों को, उनको ये प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये शेड्यूल्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो हमारे जो ऑफिशियल तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आभार। थैंक यू मैम। Thank नीलू कुछ कहना चाहेंगे? No, sir. रीजनल डायरेक्टर साहब हमारे साथ हैं, यस प्लीज। Anyhow, good. Thank you, madam. Dear learners, we are once again informing you all, there is no need to worry about your studies. And I have seen someone is also writing about the practicals. I hope my colleagues already told you people to conduct the practical sessions and the practical exam also after the TEE June theory examination at TPS College. At that time, as per the schedule, we will inform to the students through email, as well as we will upload in the our RC Patna website also. We will post in the social media. Now, for submitting the assignments, you can submit at the regional center. Of course, it may be maybe 1 or 2 months time. The practicals will be conducted after July 21st, because of up to the 21st July, we are having the examinations of the theory. After that, we will give you the schedule. You can attend, and there is a guided and unguided practical examination, as already Professor Sachi Shah madam has already explained you. And I hope madam has given you very clear picture about that. I request you all, don't take much tension. We will conduct as per the schedule, and we will provide you all the support services from regional center partner as well as our study center. IGNOU is a people's university. And finally, also I am informing you all, we are all here to serve you. We are all here to support you about your studies. Please be comfortable with Indira Gandhi National Open University. Thank you. you so much, sir. Thank you Thank so Yeah, very madam. Thank much. you, madam. And making this meeting fruitful